Hello class 8 students, this is your science teacher Agrima Rawat. Okay, so we are going to continue with the chapter number 3, that is synthetic fibers and plastic. Previously we have gone through this chapter and we have done the part synthetic fibers, what are synthetic fibers and types of it. In this video we are going to do the plastic part, so what are its types and other things about it. So let us start. So the first we are going to talk what plastic is. Plastic is also like a polymer, as we have learned that synthetic fiber is a polymer, means it is made up of small monomers, and monomers attached together and form a polymer. Same as it is, plastic is also a polymer. As you can see in this picture, here a linear arrangement is here. This one is a one monomer, okay, and many monomers have joined together in a straight line. This type of arrangement is going to be called as linear arrangement, when something is arranged in a proper single line. Okay, so monomer is one monomer is there, and when many monomers attach together in a single line, that is a plastic, that is a polymer. Okay, now another type of arrangement can also be there, like in the next picture you can see that cross-linked arrangement is there. Cross-linked arrangement means here one monomer is attached, one linear arrangement is there, then the second linear arrangement is also present here. आप देख सकते हैं. सो एक लीनियर लाइन के बाद दूसरी लीनियर लाइन लगी हुई है और वो दोनों भी एक दूसरे से कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है, तो क्रॉस कनेक्शन हो रखा है यहाँ पे. इस तरह से और भी लाइन, लीनियर लाइन एक दूसरे से अटैच हो जाती हैं, तो ये क्रॉस लिंक्ड प्लास्टिक कहेंगे इसे. तो इस तरीके से बहुत तरह के आपके प्लास्टिक्स होते हैं. दे आर ऑल्सो पॉलीमर सेम एज इट इज़ द सिंथेटिक फाइबर्स. ओके, and plastics are easily moldable means they can be shaped into different structures. Like you would have seen at your home also, plastic bottles are there, plastic jars are there, chairs, tables, many things. Okay, so the plastic is easily moldable, it can be shaped into different structures. We can see it in our home also in various structures. Okay, so now the next thing, what are the properties of the plastic. प्लास्टिक की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, ऐसा क्या है प्लास्टिक में जो कि हम उसे अपनी अलग अलग ज़रूरतों के लिए यूज़ करते हैं. ओके, द फर्स्ट थिंग इज़ प्लास्टिक आर नॉन रिएक्टिव मीन्स इट डजेंट रिएक्ट विद एनी अदर मटीरियल. अगर आप उसके अंदर कोई चीज़ स्टोर करके रखते हैं तो वो दूसरे मटेरियल्स के साथ रिएक्शन नहीं करता. ठीक है, जैसे कि बहुत सारे आपके मेटल्स हैं जो कि जिनके अंदर अगर आप सामान रख दें, कुछ कोई केमिकल स्टोर कर दें, तो वो उसके साथ रिएक्शन करने लगते हैं. मेटल्स जो हैं केमिकल्स के साथ रिएक्शन करने लगते हैं, तो आप मेटल्स के अंदर उन्हें स्टोर नहीं कर सकते. बट प्लास्टिक कैन बी यूज फॉर दैट. यू वुड हैव सीन इट इन द medicine bottles, right? Medicine, most of the medicines, the syrups and all, they come in a glass jar or a plastic bottle because it is non-reactive. Plastic is a non-reactive substance. Okay, so react नहीं करेगा उसके साथ, ख़राब नहीं करेगा उसे. Okay, so in the picture also you can see that's why we use because of the nature of the plastic, that it is non-reactive, it is used to make these type of jars you can see in the picture. Okay, next thing, the plastic is light, strong and durable. It is not heavy weight. Okay, हल्का होता है but strong होता है. हल्का होने के बाद भी it is a very strong substance. Okay, and durable means it can be easily used, so it is long lasting. And these jars are long lasting, right? These can be used for a long term because of their light, strong and durable property. Okay, next thing, very important, that it is cheaper. बहुत सस्ता होता है than other metals. Okay, so it is very cheap, and very important is that it is bad conductor of heat. Okay, it is bad conductor of heat.
Now, what do we understand by a bad conductor of heat? Like you would have seen in the kitchen that many utensils, your mother cook um, vegetables and other things इन द यूटेंसिल, जो बर्तनों में आपकी मदर खाना वगैरह पकाते हैं, तो उन कुछ बर्तनों के साइड में हैंडल्स होते हैं और वो हैंडल्स में प्लास्टिक लगा होता है. देखा होगा आपने. क्यों लगा है वो प्लास्टिक वहाँ पे हैंडल पे? इन द पिक्चर ऑल्सो यू कैन सी देर इज़ अ हैंडल of this pan and this is made up of plastic. So what is happening here, आप जब इस बर्तन को गर्म करेंगे, इसमें खाना पका रहे हैं या पानी उबाल रहे हैं, चलिए ठीक है, यू आर बॉइलिंग वाटर, सो द हीट विल ट्रांसफ़र टू दिस होल पैन, पूरे पैन में गर्मी जाएगी. अब ये गर्मी अगर इसका हैंडल मेटल का ही बना होता तो इसमें भी पास हो जाती, और आप फिर उसे हैंडल कैसे कर पाते, उसे पकड़ कैसे पाते, बिकॉज वो तो गर्म है तो आप पकड़ नहीं पाते. ठीक है, हैंडल का पर्पज़ ही नहीं रह जाता. तो आप इसे क्या करें, आप क्या उसे यूज़ नहीं कर पाते प्रॉपरली, राइट. और तो इसलिए यहाँ पे इसके हैंडल पे क्या लगाया गया, प्लास्टिक, सो दैट बिकॉज जो हीट यहाँ पे इस मेटल पे ट्रांसफ़र होगी, ये इस पे हैंडल पे नहीं जाएगी. बात समझ आ रही है. तो प्लास्टिक क्योंकि हीट को कंडक्ट नहीं करता, कंडक्ट मतलब अपने थ्रू जाने नहीं देता, तो उसको वो गर्म नहीं होगा प्लास्टिक, तो आप आराम से उसे पकड़ पाएंगे. ठीक है, ऐसा एग्जांपल आपको इलेक्ट्रिक आयरन में भी दिखता है. एट योर होम यू वुड हैव सीन दैट इलेक्ट्रिक आयरन प्रेस जिसे हम कहते हैं, तो उसका जो हैंडल होता है ऊपर से जो पकड़ने के लिए है, वो क्या किससे बना होता है, प्लास्टिक. ठीक है, नीचे की प्लेट जो होती है वो आयरन से बनी हुई है, बट ऊपर किससे बना हुआ है, प्लास्टिक से बना है. सो दैट द हीट दैट इज़ जनरेटेड ऑन द आयरन प्लेट दैट डू नॉट गेट ट्रांसफर टू द हैंडल. ओके, दैट्स वाई इट इज़ मेड अप ऑफ प्लास्टिक. तो क्योंकि प्लास्टिक एक बैड कंडक्टर है हीट का. ओके, क्लियर अबाउट इट. द बैड कंडक्टर ऑफ हीट, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक. नेक्स्ट इज इट इज़ द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और यू कैन से बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी को भी पास नहीं करता अपने में से प्लास्टिक. ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल वेरी ईजी एग्जाम्पल, यू वुड हैव सीन एट योर होम. आपने कभी वायर देखे होंगे, इलेक्ट्रिक वायर्स. तो इलेक्ट्रिक वायर अगर आपने प्रॉपरली देखा हो तो ये इस तरह का दिखाई देता है. आपको दिख रहा है ये पिक्चर में, ठीक है, इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है ये. तो इसके अंदर ये जो रेड ब्लैक कलर का आपको दिखाई दे रहा है, ये प्लास्टिक है. इसके अंदर कॉपर वायर्स होती हैं, है ना. कॉपर वायर इसके अंदर होती है एक्चुअल में, जो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी को लेके जा रही है. ये प्लास्टिक उसके ऊपर क्यों लगाया गया, ताकि किसी को करंट ना लगे. अगर कोई भी वो डायरेक्टली कॉपर वायर को टच करेंगे तो आपको इलेक्ट्रिसिटी आपकी बॉडी में पास हो जाएगी. बट इसके ऊपर प्लास्टिक का कवर लगा हुआ है, इसकी वजह से ये ट्रांसमिट नहीं करेगा इलेक्ट्रिसिटी को. ठीक है, तो किसी को करंट लगने के जो कंडीशंस हैं, चांसेस हैं, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे. ठीक है, एक तो ये एग्जांपल हो गया. दूसरा एग्जांपल है, आपने स्क्रू ड्राइवर देखा होगा. दिस इज़ द स्क्रू ड्राइवर. ओके, आप आगे से जैसे आप किसी नट को आप लूज़ कर रहे हैं या टाइट कर रहे हैं, तो आप स्क्रू ड्राइवर का यूज़ करते हैं, राइट. स्क्रूज़ को आप टाइट करने के लिए. ओके, सो यू वुड हैव सीन इट्स हैंडल. इसका भी हैंडल जो है दैट इज़ मेड अप ऑफ प्लास्टिक. Why it is made up of plastic? Because it will not conduct the electricity from this metal body to the handle, because handle से हमने पकड़ रखा है. ठीक है, तो हमें करंट नहीं लगेगा. Okay, so this is a very good property of plastic. Because of it, in many things the plastic has been used. Okay, everybody is clear about it. First property was it is non-reactive. प्लास्टिक नॉन रिएक्टिव है, रिएक्ट नहीं करता किसी के साथ. दूसरी चीज़, लाइट है, हल्का है, स्ट्रॉन्ग है, ड्यूरेबल है. ड्यूरेबल मतलब इजीली आप उसे यूज़ कर सकते हैं. चीपर है, सस्ता है मतलब. ठीक है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट है. तो हैंडल्स वगैरह में आप किचन में यूटेंसिल्स जो होते हैं उनमें आप इसे यूज़ कर सकते हैं बड़े आराम से. इलेक्ट्रिक आयरन में यूज़ करते हैं इस वजह से प्लास्टिक को. पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, सो इलेक्ट्रिसिटी भी पास नहीं करता, तो इसके लिए आप प्लास्टिक जो आपके इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं उसमें कवरिंग के लिए यूज़ करते हैं प्लास्टिक को. स्क्रू ड्राइवर्स,
इन सब में भी आप इसे यूज़ करते हैं ताकि कंडक्शन हमारी बॉडी तक ना पहुँचे इलेक्ट्रिसिटी का। ओके, क्लियर अबाउट इट? ओके, नेक्स्ट थिंग, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स। प्लास्टिक के भी 2 तरह के होते हैं, ठीक है। आपने देखा भी होगा कि कुछ प्लास्टिक्स जो होते हैं वो तो ईज़िली आप हल्का सा उन्हें गर्म करें तो वो एकदम से अपनी शेप बदल देते हैं। कभी आपने किचन में देखा हो, कभी आपने कोई बॉटल वगैरह या प्लास्टिक की कोई भी चीज़ जो गैस स्टोव होता है उसके पास रख दिया, ठीक है, गैस बर्नर के पास थोड़ा सा पास रखा था और आपने खाना वगैरह पकाया वहाँ पे और बॉटल पास में ही रखी थी, गर्मी की वजह से वो पिघल के मुड़ गई वहाँ से। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये एक तरह का प्लास्टिक है जो कि ईज़िली अपनी शेप चेंज कर लेता है गर्मी मिलने पे। बट कुछ ऐसे भी प्लास्टिक होते हैं आजकल के टाइम पे, आप देख सकते हैं इन द एड्स ऑल्सो यू वुड हैव सीन दैट माइक्रोवेव प्लास्टिक बॉक्सेस आर कमिंग। माइक्रोवेव में रखने वाले, जो कि माइक्रोवेव आपने देखा होगा एक मशीन होती है खाना पकाने के लिए, उसमें भी इन्हें डाल सकते हैं माइक्रोवेव में भी, जबकि माइक्रोवेव में बहुत गर्मी होती है तभी भी ये जो प्लास्टिक है ये अपनी शेप को चेंज नहीं करता उसके अंदर भी। तो ये 2 तरह के प्लास्टिक्स हैं, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट इज़ थर्मोप्लास्टिक एंड सेकेंड इज़ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है। सो द थर्मोप्लास्टिक इज़ द प्लास्टिक विच गेट सॉफ्टेंड एंड डीफॉर्म्ड व्हेन हीटेड। जब इस प्लास्टिक को गर्म किया जाता है तो ये सॉफ्ट हो जाता है और डीफॉर्म्ड मतलब अपनी शेप चेंज कर लेता है। फॉर्म मतलब शेप, डीफॉर्म मतलब अपनी शेप को चेंज कर लेता है, ठीक है। उसकी शेप बिल्कुल चेंज हो जाती है, बिगड़ जाती है अगर उसे गर्म करेंगे। ओके, नेक्स्ट थर्मोसेटिंग बिल्कुल उल्टा है। जब उसे आप गर्म करेंगे एक मॉडरेट आप हाई टेम्परेचर पे भी, तो भी इतनी गर्मी में भी ये अपना जो शेप है वो चेंज नहीं करता और जबकि सॉफ्ट नहीं होता ये क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। और गर्मी मिलने पे ये सॉफ्ट ना होके ये क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है और अपनी शेप नहीं चेंज करता, ठीक है। तो ये पहला डिफरेंस हो गया थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक पे। ओके, सेकंड, इट कैन बी रीशेप्ड, मतलब इजीली अगर इस प्लास्टिक को आप रिसाइकिल बड़े आराम से कर सकते हैं, क्योंकि ये अलग अलग शेप्स ले सकता है। आपने एक प्लास्टिक बॉटल यूज़ करी, आपने उसे क्या कर दिया, पिघला दिया, हीट दी, तो वो अपनी शेप चेंज कर लेगा और आप उसको जिस भी शेप में नई शेप देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। तो रीमोल्डेबल बोल सकते हैं इसे, ठीक है। मतलब मोल्ड मतलब उसको एक नई शेप देना, रीमोल्डेबल मतलब दोबारा से एक नई शेप दे देना। ओके, बट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कैन ओनली बी शेप्ड वन टाइम, एक ही बार आप शेप कर सकते हैं, उसके बाद अगर आप उसे दोबारा से रीशेप करना चाहेंगे तो नहीं कर सकते, एक ही बार में होगा वो, एक ही बार अपनी शेप लेगा। ओके, इट कैन नॉट बी रीशेप्ड अगेन एंड अगेन, क्लियर। नाउ कमिंग टू द एग्जाम्पल्स ऑफ इट, व्हाट आर इट्स एग्जाम्पल्स? PVC, फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक इज PVC। ओके, PVC पाइप्स सुने होंगे आपने, अगर आपके घर में कभी काम हुआ हो ऐसा, PVC पाइप्स बोलते हैं। तो इन द पिक्चर यू कैन सी हेयर, राइट, दिस इज अ PVC पाइप। सो इट इज़ PVC फुल फॉर्म इज पॉलीविनाइल क्लोराइड। व्हाट इट इज़? पॉलीविनाइल क्लोराइड। ओके, इट इज़ अ टाइप ऑफ थर्मोप्लास्टिक। इट कैन बी रीशेप्ड, ये दोबारा से शेप चेंज कर सकते हैं, मतलब इन्हें रिसाइकिल किया जाता है बड़े इजीली। ओके, नेक्स्ट वी आर वेरी मच फेमिलियर अबाउट इट, polythene we use it very regularly in our day to day life, whether it has been banned now because of its not that much it is not friendly to the environment, right, it harms our environment, that's why it has been banned. बट प्लास्टिक तो बहुत जगहों पे यूज़ होता है, अभी भी बहुत जगहों पे यूज़ होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉपर्टी ऑफ वाटर प्रूविंग मटेरियल। ये पानी से बचा के रखता है मटेरियल्स को। तो आपने देखा होगा अभी भी अगर आप डेयरी शॉप्स में जाएंगे तो वहाँ पे अभी प्लास्टिक में ही मिल सकता है आपको, कागज़ में तो दे नहीं सकते, ना ही कपड़े के उसमें दे सकते हैं। तो कुछ जगहों पे तो आपको पॉलीथीन यूज़ करनी ही पड़ती है। इट इज़ वेरी मच बिकॉज इट डजेंट हैव एनी अदर ऑल्टरनेटिव ऑफ इट, ठीक है, इसका कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं है, इस वजह से अभी भी हम पॉलीथीन के बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ओके,
बट जिन जिन चीज़ों में हम नहीं अगर हम चाहते हैं तो हम कुछ चीज़ों में जिनमें अवॉइड किया जा सकता है उसमें अवॉइड करना चाहिए ऑब्वियसली. ओके, देर इज़ वन मोर एग्जाम्पल, पॉलीस्टाइरीन. ओके, पॉलीस्टाइरीन. तो पॉलीस्टाइरीन इज़ वन टाइप ऑफ थर्मोप्लास्टिक. ओके, then one more example is there, Teflon. Teflon is very important because आपने सुना होगा नॉन स्टिक पैन होते हैं हमारे घरों में, नॉन स्टिक पैन जिसमें कोई चिपकता नहीं है. ठीक है, देखा होगा आपने, एक ब्लैक कलर का कवर होता है, उसमें पैन्स में कोटिंग लगी हुई होती है. तो इसमें आप बिना तेल के भी अगर आप किसी चीज़ को पकाते हैं तो वो उसमें चिपकती नहीं है. ओके, सो दैट कोटिंग, ये चाहे पैन ये आयरन का ही बनाओ, इसके ऊपर किस चीज़ की कोटिंग लगा देंगे, टेफ्लॉन की. ओके, सो ये जो आपके नॉन स्टिक पैन्स वगैरह होते हैं घर में, उसमें टेफ्लॉन लगा होता है. ठीक है, क्योंकि इसमें पानी तेल वगैरह चिपकता नहीं है. ओके, आप इसमें अगर पानी डालेंगे तो एकदम से इसमें से निकल जाएगा, रुकेगा नहीं इसके सरफेस पे. टेफ्लॉन, अगर इसके टेफ्लॉन की प्रॉपर इसमें कोटिंग लगी हो तो. ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं थर्मोप्लास्टिक्स के. ओके, क्लियर अबाउट इट. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज़ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. ओके, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, व्हाट इट इज़. थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, अब हमने एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं इसके बस, और सब चीज़ें हम देख चुके हैं. तो इसकी फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ बेकेलाइट. बेकेलाइट क्या है, इसकी करेक्टरिस्टिक ये है कि ये पुअर कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का. मतलब ये अपने में से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देता. तो इसको इसलिए इसको यूज़ किया जाता है स्विचेस बनाने के लिए. इन द एट योर होम यू वुड हैव सीन द स्विच बोर्ड्स. तो आप क्योंकि इसके पीछे वायरिंग लगी हुई है, अगर ये ऐसा मटेरियल से बनाओ कि इसमें से इजीली इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो आपको इजीली करंट लग सकता है. ठीक है, तो ऐसा मटेरियल होना चाहिए जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास ना होती हो. तो बेकेलाइट को यूज़ किया था ज़्यादातर स्विचेस में. ओके, एंड हैंडल्स ऑफ सॉसपैन, ये हैंडल जो है सॉसपैन का, it is made up of bakelite because it is a bad conductor of heat also. Okay, clear about it. Now the next is melamine. melamine एक आपका example है. Okay, its property is that it can resist fire. फायर को रेजिस्ट कर सकता है, मतलब फायर से इसको ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होती बिल्कुल भी. और ये ज़्यादातर प्लास्टिक से अच्छी तरह से हीट को टॉलरेट कर सकता है. तो इसलिए इसको फ्लोर टाइल वगैरह बनाने में यूज़ करते हैं. आपने देखा होगा घरों में नीचे की साइड जो आपके फ्लोर होते हैं उसमें टाइल्स इनसे बनती हैं. किचनवेयर मतलब जो किचन में बर्तन वगैरह होते हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है इसे. और यूनिफॉर्म ऑफ फायरमैन, जो फायरमैन होते हैं, आपने देखा होगा फायरमैन होते हैं, उनकी जो ड्रेस होती है दैट इज़ मेड अप ऑफ मेलामाइन. Why? Because I have told you that its property is that it can resist the fire. और फायरमैन को उससे ज़्यादा क्या ज़रूरत होगी, क्योंकि उन्हें आग के कांटेक्ट में जाना पड़ता है. अगर उनकी जो ड्रेस है वो पिघल जाएगी या आग पकड़ लेगी तो क्या होगा, उनको हार्म हो सकता है. तो इसलिए उनकी ड्रेस जो है मेलामाइन से बनाई जाती है, जो कि ईजिली बहुत ज़्यादा हीट को भी टॉलरेट कर लेती है. ओके, क्लियर अबाउट इट. सो दिस वाज द टाइप्स ऑफ प्लास्टिक, thermoplastic and thermosetting plastic. I think everybody would be clear about it. Okay, now the next, plastics and the environment. प्लास्टिक और environment. तो प्लास्टिक का environment पे एक बहुत ही बुरा असर पड़ा है हमारे. In the previous years we have seen that plastic has been banned from many areas just because of the disadvantages of the plastic. क्योंकि प्लास्टिक्स के बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेजेस हैं हमारे इन्वामेंट पे. अच्छाई भी है उसकी, बट इट हैज़ मोर डिसएडवांटेजेस. इट इज़ पॉल्यूटिंग आवर इन्वायरमेंट. सो हाउ इट इज़ हैविंग दैट मच ऑफ डिसएडवांटेज, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट. फर्स्ट डिसएडवांटेज वी आर गोइंग टू टॉक इज़ दैट प्लास्टिक आर नॉन बायोडिग्रेडेबल. नॉन बायोडिग्रेडेबल मीन्स दैट इट डजंट गेट डिग्रेडेड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, आपके जो हवा में, पानी में, हर जगह छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं. वी हैव टॉक्ड अबाउट इट. वो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो, जैसे कि आपने मान लिया आपने वेजिटेबल पील्स फेंके, जो आपके सब्जियों के छिलके होते हैं,
वो आपका आपने फेंके तो वो थोड़े टाइम बाद गल जाते हैं, ठीक है, मिट्टी में ही यहाँ पे क्या हो जाएंगे, बाइंड अप हो जाएंगे और मिट्टी में ही डिग्रेड हो जाएंगे, क्योंकि क्यों कैसे हुए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने कर दिया, ठीक है। तो उससे बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है ये वेजिटेबल पील्स। बट वहीं आपने प्लास्टिक डाला साइड में, तो आप देखेंगे कि वो प्लास्टिक को कुछ नहीं होता, वो एज इट इज़ पड़ा रहता है, वो डिग्रेडेड नहीं होता, ठीक है, सड़ता नहीं है। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक जो प्लास्टिक है उस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट नहीं कर पाते। तो क्या होगा, प्लास्टिक ऐसे का ऐसे ही पड़ रहेगा। इन द पिक्चर ऑल्सो यू कैन सी हेयर द प्लास्टिक इज़ स्प्रेड ओवर इन दिस सॉइल। तो क्या हो रहा है इससे, और प्लास्टिक के अंदर बहुत सारे केमिकल्स वगैरह भी होते हैं, तो जब ये मिट्टी में पड़ा रहता है तो सॉइल का पॉल्यूशन करता है, ठीक है, सॉइल को ख़राब कर रहा है। ओके, so this is how the plastic non biodegradable character is harming our environment. Second thing, if it goes into the aquatic life, पानी में चला जाता है, तो एक्वाटिक जो लाइफ है, मतलब जो आपके फिश हैं या पानी में रहने वाले कोई भी ऑर्गेनिजम्स हैं, दे आर गोइंग टू बी हैविंग थ्रेट ऑफ लाइफ, बिकॉज पानी में क्या हो गया, गंदगी हो गई है, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं, उनका जो इन्वायरमेंट था उन्हें ख़राब कर दिया आपने, ठीक है। जैसे कि मान लिया आपके घर में लोग आके कूड़ा फेंकते जा रहे हैं, तो सेम हम क्या कर रहे हैं, वाटर बॉडीज़ जो हैं, वाटर में जो रहने वाले फ़िश हैं, उनके घरों में कूड़ा डाल रहे हैं, तो उनकी लाइफ पे असर पड़ रहा है, सेम टू सेम, राइट। नेक्स्ट, इफ़ नाउ हम कह रहे हैं कि हमने फेंका नहीं, हम तो जला देते हैं इनको, बट जलाने से क्या होता है, जलाने से भी इनमें से बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैसेस निकलती हैं। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, इन दिस पिक्चर यू कैन सी दैट व्हेन द प्लास्टिक हैज़ बीन बर्न्ड, तो बहुत ही काला धुआं निकल रहा है, मतलब ये टॉक्सिक गैसेज हैं, मतलब जहरीली गैसेज निकल रही हैं इसमें से। ओके, इट इज़ वेरी हार्मफुल एंड इट इज़ गोइंग टू कॉज द एयर पॉल्यूशन। इसकी वजह से क्या होगा, एयर पॉल्यूशन होगा, ठीक है। यहाँ पे सॉइल पॉल्यूशन हुआ पहली वाली पिक्चर में, यहाँ वाले में क्या हुआ, वाटर पॉल्यूशन, नाउ इट इज़ हैविंग एयर पॉल्यूशन, 3 पॉल्यूशन हो गए यहाँ पे। नेक्स्ट इज़ प्लास्टिक बैग चोक ड्रेन्स। आपने ड्रेन्स वगैरह देखी होंगी, ठीक है, नालियाँ जो होती हैं हमारे घरों से गंदा पानी निकाल लेके जाती हैं। अब वहाँ पे आपने ऐसे ही कूड़ा फेंकते रहते हैं हम बाहर, और वो उड़ उड़ के कहाँ पहुँच गया, नाली में पहुँच गया, ड्रेन में पहुँच गया। ओके, एंड you would have seen that when the garbage gets stuck over in the drains, it stops the water to move forward, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ड्रेन क्या हो जाएगी, चोक हो जाएगी, रुक जाएगा, मतलब पानी मूव नहीं कर पाएगा आगे, और वो वहीं पे सड़ने लगेगा, स्मेल आने लगती है वहाँ पे, राइट, होता है ऐसा। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, प्लास्टिक वगैरह की वजह से बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये डिग्रेड नहीं कर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्हें डिग्रेड नहीं कर पाते, तो ये एज इट इज़ पड़े रहते हैं। ओके, सो दिस इज़ द थिंग, इट इज़ गोइंग टू कॉज मेनी टाइप ऑफ डिजीज़। मच्छर आएंगे उस पानी में, रुकेंगे तो, और उसकी वजह से मलेरिया, डेंगू, मेनी टाइप्स ऑफ अदर डिजीज़ कैन बी हैपनिंग बिकॉज ऑफ इट। ओके, नेक्स्ट, इफ़ cow consume these plastic, you would have seen that many people used to throw the vegetable peels and other eating materials in the plastic bags, ठीक है। अब प्लास्टिक बैग के अंदर आपने सब्जियों के छिलके वगैरह डाल के फेंक दिए कूड़े में। अब जो गायें वगैरह होती हैं जो ऐसे ही रोम कर रही हैं, तो वो खाने के उसमें सर्च में जाती हैं, तो उन्हें दिख तो रहा है कि प्लास्टिक के अंदर क्या है, आप उसका वेजिटेबल पीस वगैरह पड़ी हैं, तो वो उसे खाएंगी, बट प्रॉपरली वो उसे खोल के तो नहीं खा सकती प्रॉपर, तो वो प्लास्टिक बैग भी उसके साथ साथ कंज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता इसके बीच में डिफरेंस क्या है। ओके, समटाइम्स इट गोज़ इनटू इट्स बॉडी, और इसके स्टमक में देखो, इसके स्टमक में जाके स्टक हो गया, ठीक है। प्लास्टिक बैग इनके पेट में से निकलते हैं। बहुत बार देखा गया है ऐसा कि काऊ जब मर जाती हैं तो उनके अगर आप पेट काट के देखेंगे तो देयर विल बी मेनी a large amount of plastic would be there in their stomach, and sometime if it is consuming it and at the time it got stuck into its respiratory system, अगर respiratory system में सांस की नली में वगैरह जाके रुक गया या ऐसा कुछ चोकिंग हो गई वहाँ पे, तो काऊ क्या हो जाएगी, मर जाएगी, राइट। सो दिस कैन बी a one more harm to our environment.
नेक्स्ट इज रिसाइकल प्लास्टिक बैग्स ऑल्सो हार्मफुल फॉर हेल्थ. जो हमने अभी बात करी थी थर्मोप्लास्टिक्स की, तो थर्मोप्लास्टिक को हमने कहा रिसाइकिल कर सकते हैं, बट रिसाइकिल कर तो सकते हैं बट वो प्लास्टिक और ज़्यादा हार्मफुल बन जाता है क्योंकि उसमें से लीक आउट होने लगता है केमिकल्स, उससे केमिकल्स बाहर निकलने लगते हैं. और आप मान लीजिए कि आपने उसी प्लास्टिक बॉटल किसी रिसाइकल्ड प्लास्टिक बॉटल को आप यूज़ कर रहे हैं, आपने उसमें पानी रेगुलरली पी रहे हैं, तो क्या होगा, उसमें से केमिकल्स निकल रहे हैं, वो आपके पानी में आ रहे हैं और आप उसे पी जा रहे हैं. ओके, इट इज़ हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ, it is harmful for our health very much. Okay, so these are some disadvantages of plastic. Okay, now next thing, now we have talked about that what are its disadvantage. Now how can we improve it, how can we reduce all this thing that is happening because of the plastic pollution. Okay, so there is one very famous principle of it that is called 4 R's principle. 4 R's principle मतलब 4 R हैं. कौन कौन से R हैं वो? फर्स्ट इज रिसाइकिल, रिकवर, रिड्यूस एंड रीयूज़. अब इन्हें समझते हैं. फर्स्ट रिसाइकलिंग आई हैव टोल्ड यू, वी कैन रिसाइकिल द प्लास्टिक. हाँ, हेल्थ के लिए हार्मफुल होता है बट ऐसी चीज़ के लिए आप यूज़ करें उस रिसाइकिल प्लास्टिक को जो कि डायरेक्टली हमारे कांटेक्ट में नहीं आती. ऐसी चीज़ें बनाएं उससे जो कि हम खाने पीने वगैरह में यूज़ नहीं करते. ओके, नेक्स्ट रिड्यूस मतलब कम करना, प्लास्टिक का यूज़ को कम करना. कैसे कर सकते हैं? जैसे बैन हुआ प्लास्टिक बैग, तो व्हाट हैज़ बीन टोल्ड दैट यू कैन ब्रिंग योर ओन bags. It can be of jute, it can be of cloth, it can be of paper, it can be a paper bag. Okay, paper bag, I would not suggest a paper bag because papers are also made up of trees. ठीक है, trees काट करके बनाया जाता है, तो we should not prefer paper bags, but we can use the jute and cloth bag क्योंकि उसे बार बार हम यूज़ कर सकते हैं. पेपर बैग का इतना ज़्यादा यूज़ नहीं हो सकता. ठीक है, तो आप जूट बैग और क्लोथ बैग को सबसे ज़्यादा यूज़ करें. हाँ, अगर फिर उसके बाद बचता है तो यू कैन यूज़ प्लास्टिक बैग बिकॉज पेपर बैग्स को रिसाइकलिंग करके बार बार यूज़ किया जा सकता है. ओके, क्लियर. सो जूट बैग्स एंड क्लोथ बैग्स कैन बी यूज इन द प्लेस ऑफ प्लास्टिक बैग्स, तो उसे यूज़ किया जाता है जहाँ जहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट इज़ रीयूज़. आपने प्लास्टिक बैग लाए, ठीक है, आपने कोई सामान खरीदा, अब आपको ज़रूरत थी, आपको लाना ही पड़ा, उस प्लास्टिक बैग को दोबारा यूज़ कीजिए. ठीक है, या आप सब्ज़ी वालों को दोबारा दे दीजिए. आपके घर में आ गई सब्जियां, चलिए आपने प्लास्टिक बैग में ले आए, उस प्लास्टिक बैग्स को इकट्ठा करके दोबारा से सब्ज़ी वालों को दे दीजिए ताकि वो उसे दोबारा यूज़ कर पाएँ, या आप ही उसे यूज़ कर रही है किसी तरह से. ठीक है, ताकि नई प्लास्टिक बैग्स की ज़रूरत ना पड़े और इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन कम से कम हो. ओके, दिस कैन बी वन वे. एंड देन कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज़ रिकवर मतलब कि आपने देखा होगा कि आजकल के टाइम पे बहुत सारे NGOs वर्क कर रहे हैं. दे आर मेकिंग 2 गार्बेज बिन्स. ठीक है, जैसे कि एक रेड बिन बना दिया, एक ग्रीन बिन बना दिया. डस्टबिन जो होते हैं, एक ब्लू बिन बना दिया और एक ग्रीन बिन बना दिया. अब ब्लू और ग्रीन बिन क्या होते हैं? ब्लू बिन आपका जो कि आप रिसाइकिल कर सकते हैं या रिकवर कर सकते हैं, जैसे कि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है उसे उसमें डाल दीजिए, जैसे कि प्लास्टिक, पेपर्स, ये सब जो हैं आपने वो ब्लू वाले में डाला. और ग्रीन वाले में आपने किस चीज़ डाली? जो कि वेजिटेबल पील्स हैं, कोई खाना वगैरह है जो भी डिग्रेड हो सकता है, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल है, उसे उसमें डाल दिया. ठीक है, ग्रीन वाले में. तो इनको अलग अलग तरीके से यूज़ किया जा सकता है ना, गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा, उसे ऐसा कहा जाता है, गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा. ओके, तो उसे अलग अलग आप करेंगे तो उसको रिकवर करना इजी हो जाएगा. ओके, तभी तो रिसाइकलिंग आगे जो प्लांट्स कर पाएंगे वो रिसाइकलिंग वगैरह रिड्यूस कम से कम उसको आप ख़राब कर रहे हैं तो उसका यूज़ आगे चल के अच्छी तरह से हो पाएगा. ओके, so in this way, by this 4R principle, we can reduce the plastic pollution very much. In various aspects we can use this principle
इन आर डेली लाइफ, और आप लोग यूज़ करेंगे, इट विल बी इफेक्टिव फॉर योर ओन फैमिली, ओके, फॉर आवर ओन फ्यूचर. Okay, so this was it for this chapter. This chapter is complete. Thank you.